شادی کے جو 3 سال ہیں اس میں کیا چینجز آئے اشنا کی لائف میں, حمزہ کی لائف میں؟ ان کی زندگی تو بہت اچھی ہو گئی ماشاء اللہ سے. آئی کین اسپیک فار ہم, دا بیسٹ تھنگ دیٹس ایور ہیپنڈ. نہیں, آئی تھنک اٹس دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ. آئی تھنک آئی ووڈ ریکمینڈ اٹ. آئی ایم سو لکی کہ مجھے الحمد للہ سب سے اچھے پارٹنر ملے ہیں. ہی از سو ریسپیکٹفل. Our timings are completely the opposite. Opposite. That was the first thing that changed. That was a big change. میں تو صبح 6 بجے اٹھتا ہوں, پھر میں گولف کے لیے چلا جاتا ہوں, پریکٹس ہوتی ہے. And she has shoot a lot of times. Danish, you would know till what time the shoots go. So the routine, immediate کوئی change. ٹائم نہیں ہوتا. Yeah. کوئی timing نہیں. He cooks. Yeah, I cook. In Vienna, I he cook. cooks. What do you cook? Like کیا چیزیں جو آپ اشنا کے لیے بناتے ہیں؟ اشنا will be happy. I'll cook this for her. I enjoy making a good steak Oh. with salad and some roasted potatoes on the side and a tomato mozzarella salad. رمضان میں لائف چینجز, یہ مہینہ ہے جو ذرا اسپرچل مینٹل ڈیٹاکس کا ہوتا ہے, فزیکل ڈیٹاکس کا ہوتا ہے. Very true. تو ہر چیز ذرا سلو ڈاؤن کر جاتی ہے. زیادہ تر فیملی کے ارد گرد ہی زندگی گزرتی ہے. پھر میری ایک چھوٹی سی پرائیویٹ پریکٹس ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, اور میں پنجاب کے یتیم خانوں میں کام کرتی ہوں. تو ادھر کی افطاریاں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ. How do you cope up with that? آپ نے بھی بچے, ان کا brought up, کام, سب کچھ ساتھ ساتھ میں کیا. You had mom guilt and how did you? رابعہ, جیسے نادو نے کہا کہ ایک عورت کا دل جو ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے, اور ہمارے پیروں کے نیچے جنت ایسے ہی نہیں دیتی ہے. سو موم گلٹ جو ہے وہ, اگر آپ, میں جس طرح فیل کرتی ہوں کہ اگر میں کام کر رہی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ آرگنائزڈ رہیں آپ کے گھر کے پیچھے, جیسے آپ نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے, آپ نہیں ہیں گھر پہ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب آپ شکر کرتے ہیں نا تو وہ سارا گلٹ ختم ہو جاتا ہے. کتنے پیشنٹس کا علاج پورے سال میں SIUT میں ہوتا ہے؟ So basically 2025 کا اگر ہم figures اٹھائیں, so we treated about 14.5 million people, just treated them. 14.5 million people? Yes. Oh. I hope I got it right. Liaquat? Right. So my numbers are kind of weird, لیکن آپ ڈیزیز ہمارے برداشت اتنے سارے لوگوں کو ہوتی ہے. جی, بیکاز آپ جب نمبرز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ ہم SIUT جائیں گے, ہمارے ٹیسٹ فری ہو جائیں گے, ہمارا لیب ورک اپ فری ہو جائے گا, ہمیں ریڈیولوجی کے ایکس ریز, MRIs ہمارے فری ہو جائیں گے. ابھی ظفر بھائی جس طرح بتا رہے تھے کہ وہ ایریاز خاص طور پہ KPK میں, اور وہ ایریاز جہاں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے مسائل ہیں, آپ لوگوں نے وہاں تک ایکسس کر کے لوگوں کی مدد کرنے کا سوچا. ہاؤ ڈڈ یو کم اپ ود دس؟ کون تھا آپ کا انسپریشن اور آپ نے کہا میں نے یہ کام کرنا ہے؟ رابعہ, دانش, تھینک یو سو ویری مچ. بہت بہت شکریہ تم دونوں کا, بہت خوش رہو ہمیشہ. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ انسانیت کے لیے ہم کچھ کر سکیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اس ملک نے بہت کچھ دیا. اس ملک نے عزت, شہرت, دولت سب کچھ دیا. ایک وقت آ جاتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ جب ہے کہ جب اللہ سب کچھ دیتا ہے تو آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے ان لوگوں کی جس ایریا سے میرا تعلق ہے. اس ایریا کے اندر میں نے بہت ٹائم تو نہیں گزارا کیونکہ پرورش میری کراچی نے کی ہے, لیکن مجھے وہاں کے مسئلے مسائل کا پتہ ہے کہ ایک ماں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے ڈرائیو کرتی ہے بیسک ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے, یا بچے جاتے ہیں 6-8 کلومیٹر پانی کے لیے, صرف پانی لینے کے لیے جاتے ہیں, جو بیسک چیزیں ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں, اور شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ایسا دل دیا کہ ان لوگوں کی فکر ہے, یا میں نے اپنے بڑوں کو گھر میں کرتے ہوئے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے, اپنے والدین کو. تو یہ ماحول, تربیت میرے خیال میں اس ٹائم سے ہے. اور بہت ساری, جیسے ظفر بتا رہا ہے کہ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں آپ کی NGOs جاتی نہیں ہے یا جا نہیں سکتی. تو میں نے ظفر سے صرف کہا ہے کہ میں نے صرف ان ایریاز میں جانا ہے جہاں کوئی جاتا نہیں, کوئی جا نہیں سکتا. میں نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے, اور الحمدللہ اللہ نے بڑا کام لیا. آپ جیسے فیملیز, آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے, آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے الحمدللہ ہم وہاں تک پہنچ سکے ہیں. ماؤتھ کینسر ہے, اس کے کازز کیا ہیں؟ میں چاہتی ہوں اویئرنیس آپ کے تھرو لوگ جو سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ان کو پتا چلے کہ ماؤتھ کینسر ہونے کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم. جیسے آپ نے شروع میں کہا, سب سے امپورٹنٹ کاز اور پریونٹیبل کاز جو ہے وہ پان, تمباکو, چھالیا, گٹکا, نسوار, ان چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اس کا رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور اسی لیے یہ پاکستان میں 3رے نمبر پہ یہ کینسر ہے. یہ تھاٹ آپ کے ذہن میں آیا کیسے کہ
जितने भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको जो है वो साथ मिला के नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ और एक इनिशिएटिव दिया जाए इनको भी काम का, ये कैसे आया आपके जहन में? सो मैं 2018 में AIFD एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन वहाँ पे पढ़ा रही थी जी। एंड वहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट आया था who was completely he couldn't hear at all, he was deaf. So उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट तरीके सोचे उसको पढ़ाने के, क्योंकि we were not really trained at that point. So that's when I started visiting deaf schools और मुझे पता चला कि इन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा potential है and they are very very creative. IVS में मेरा पहला एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा. मैं चाह रहा था कि पहले भी मैं चाहता था कि मैं IVS में कोई ट्रेनिंग्स लूँ और वहाँ पर जो है मैं कुछ सीखूँ, बट मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही थी. देन मुझे जो है वो एग्जिस्ट की तरफ से जो है बुलाया गया और मैं IVS में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. अच्छा सायरा, आपके साथ ये हादसा हुआ, मैं चाहती हूँ लोगों को भी पता चले. जाहिर है आपको उस वक्त पता नहीं था कि मैं मोमबत्ती. लोगों को इल्म में होना चाहिए, क्योंकि बाद लोगों का दिमाग काम नहीं करता है जिस तरीके से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था. मैंने ये हरकत की कि मेरे हाथ में मोमबत्ती थी, मैंने टैंक खोला, कपड़ों में आग लिपट गई मेरी सारी. और आप जो ये हाथ मेरा देख रहे हो ना, आपसे हाथ ये बिल्कुल कलाई जुड़ी हुई थी, उंगलियां जुड़ी हुई थी. जब मैं नुसरत मिसबा के इस्माइल अगेडमैन से मिली हूँ फाउंडेशन से, आज तकरीबन 2011 में मिली थी मैं. और माशाअल्लाह आज मैं इतनी बहादुर हूँ कि हर काम में अपना रोटियां बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ कर ले. जबरदस्त बात है ये. किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, व्हाट टू डू? सो आई थिंक जो इनकी नन ने किया वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि उन्होंने इनकी आग बुझाई. जर्नली लोग भागते डरते हैं ना, जब वो भागते तो आग और तेज हो जाती है. एक बच्चा था जिसके दिल के अंदर प्रॉब्लम थी बचपन में और डॉक्टर्स ने कहा था कि यार इसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट वो बच्चा माशाल्लाह अब मेरे ख्याल से शायद 2.5-3 साल का हो गया और बहुत सेहतमंद है. थोड़ा सा टाइम और लगता है. उन्होंने ये बताया कि 7-8 साल तक जब तक बच्चा इतना बड़ा नहीं हो जाता ना, तो वो जो सुराख है शायद वो बंद नहीं होता. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट मैं उनसे आपको कनेक्ट कराने की पूरी कोशिश करूंगा अगर आपको कहीं से हेल्प मिल सके. प्लस ये कि मुझे बताइए आप कहीं जॉब करते हैं या नहीं? मैं जॉब करता था, वो बच्चे के चक्कर में मेरी जॉब भी चली गई. जी, इस केस में जो बच्चे हैं इसमें ग्रोइंग एज में सर्जरी नहीं करते जी. ग्रोइंग एज में कोई भी फॉल्ट जो है वो दुरुस्त होना जो है कम्प्लीटली मुमकिन नहीं होता. तो एक एज, सर्टन एज तक वो आएंगे और उस एज में उनकी सर्जरी हो जाएगी. हर 100 में से एक बच्चा पैदाइशी ये मर्ज लेकर पैदा होता है. इसको अगर मद्देनजर रखें तो तकरीबन 60,000 बच्चों की हम सालाना बात कर रहे हैं जो कंजेनिटल हार्ट यानी पैदाइशी दिल का मर्ज लेकर पैदा होते हैं. ये कितना डिफिकल्ट होता है आपका इस पे खड़े रह के चलना, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप शायद एक जगह खड़े नहीं रह सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मूव करना जरूरी है. जी बिल्कुल ठीक है आपने. तकरीबन 5 से 6 सेकंड के अंदर ये थोड़ा सा चाल देना पड़ती है. अच्छा, इसकी क्या वजह है अगर आप एक जगह खड़े रहेंगे? ये बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं. बैलेंस. आई एम अमिताभ बच्चन. मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जोरदार की ताली होना चाहिए. हाय जैसे शाहरुख खान. आई एम शाहरुख खान. कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना? अरे मैं पाकिस्तान सिर्फ आप लोग की मोहब्बत में चला आया हूँ और प्लीज 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 मुझे ये बताएं कि ये जो मास्क पहना हुआ है इसमें तो सांस ही नहीं आती है, इतनी मुश्किल होती होगी. ये कपड़े इतने गर्म होते हैं. गर्मियों के अभी अंदर तो मौसम चलो बेहतर है, लेकिन गर्मियों में क्या करते हो बेटा? जी बिल्कुल मैम, इसमें सांस लेना नहीं होता है. वैसे भी मेरे को सांस का प्रॉब्लम है और मजबूरी है कि करना पड़ता है. बच्चों के लिए करना पड़ता है. अब मुझे बताओ, जब कहीं इस तरह से जाते हो गेटअप में तो क्या कमाई हो जाती है दिन की? तकरीबन 700-800 रुपए घर पे लेके जाते हैं. सिर्फ 700-800 लेकर जाते हो? पूरा दिन इस तरह गेटअप में रहते हो? जी मैम. कैसे ये काम शुरू किया? अभी क्या सूरत हाल है, हालात कैसे हैं? देखिए मैम, शुरू से मैं जोकर नहीं था. हालात और मजबूरियों के हिसाब से ना ही ये मेरा शौक है. तकरीबन लॉकडाउन से पहले मैं कंपनी में काम करता था साइट एरिया में. जब से लॉकडाउन लग गए उसके बाद से मैं बेरोजगार हो चुका हूँ. ऐसे नहीं कि कहीं अप्लाई नहीं कीजिए. बहुत से कंपनियों में जाते हैं, पता नहीं हमारी किस्मत बुरी है या वाकई में पाकिस्तान की मैशियत ख़राब है. जो हकदार मजदूर हैं उन्हें जो है नौकरियां नहीं मिलती. दुख तो होता है कि दुनिया में इंसान ने दुनिया को रहने के काबिल बनाना चाहिए जो उसके मुखालफत में जा रहा है. ये एटम बम, ये दीगर मिसाइल, हर चीज़ दुनिया को तबाह के जो कारण है वो इजाद कर रहा है.
इसके बजाय कोई अच्छी इजादात करनी चाहिए जिसे इंसानी जिंदगी पले। अफ्तारियों का बताइए, बड़ी पॉपुलर है आप लोग जो अफ्तारी कराते हैं। जी हम तो बिल्कुल सादगी तरीके से करवाते हैं, और वेज होती है, बस ये तो बस अल्लाह की तरफ से है कि उसमें स्वाद आ जाता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे भी जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन बाकी जब हम लोग बैठे हुए कोई बात कर रहे होते हैं तो कभी ये बात फील नहीं होती है बिल्कुल ऐसा ही। यार ये किसी दूसरे मजहब से, हमें तो लगता है हम सारे पाकिस्तानी ही हैं और सब पाकिस्तान की खैर के लिए ही दुआगो हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो फ्लरिश करे। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा जो आधे से ज्यादा स्टाफ है वो क्रिश्चियन है, और इतनी हार्ड वर्किंग लड़कियां हैं कि आप यकीन करें, मेरी वालदा मुझे कहती है कि ज्यादा क्रिश्चियन स्टाफ रखा करो, ये बहुत मेहनत से लॉयल होके काम करते हैं। पाकिस्तान एक पाक सरजमीन का नाम है, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक अलग नौयत का मुल्क है। अब मैंने काफ़ी मुल्क ट्रैवल किए हैं, जैसे कि मेरे भाई हैं, फैमिली ट्रैवल करती हैं, नदीम विलियम और दूसरे भाई भी, लेकिन पाकिस्तान जैसी फिजा कहीं नहीं है, जैसी ये बरकत जमीन है मैंने नहीं देखी। और ये मैं किसी दबाव में या किसी को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं कह रहा, रियलिटी बयान कर रहा हूँ। कि आप दुनिया में कहीं चले जाएं दानिश, पाकिस्तान आपको याद आना शुरू हो जाता है। आप पाकिस्तान के खाने मिस करते हैं, पाकिस्तान के लोग मिस करते हैं। और आमिर अब्दुल्ला साहब, कौन है जो पाकिस्तानियों जैसी जो है ना मेहमान नवाजी कर सकता है? कोई भी नहीं है। जितने हम बड़े दिल वाले लोग हैं, मैं इतने इंटरनेशनल व्लॉगर्स से मिली जो ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, वो यही कहते हैं जो पाकिस्तान में अपनाइयत है वो तो कोई पैसे ही नहीं लेता, कोई पूछता ही नहीं है, कहते नहीं जी आप हमारे मेहमान हैं। कितनी जरूरी आमिर अब्दुल्ला साहब ये गुलदस्ता, इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन के जो सब्ज है उतना इंपॉर्टेंट वाइट भी है। हमारे सेट पर तो है सब्ज और सफेद, झंडे में है सब्ज और सफेद, लेकिन इसकी सही मानों में किस तरह हम रिप्रेजेंटेशन करें और जहां जहां कोताहियां हैं वहां किस तरह इंप्रूवमेंट लेकर आए। और आमिर भाई, ये जो इनिशिएटिव है आपने जो लिया है, ये बहुत एक यूनिक चीज है। ये आपके जहन में आया कैसे? इतना खूबसूरत एक मैसेज है, ये कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, कि हमने तुम सबको एक आदम और हव्वा से पैदा किया है, फिर तुम्हारे कबीले बनाए, बिरादरियां बनाई, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और शर्फ के काबिल वो होगा जो अपने क्रिएटर और पैदा करने वाले अल्लाह ताला का खौफ ज़्यादा रखता होगा। तो रासुल हिकमती मखाफत अल्लाह, सबसे बड़ा जो अक्लमंदी और दानाई है वो अल्लाह ताला का खौफ है, और मरने के बाद फिर क्या होगा इसकी फिक्र है। मैं इनको सबको गले लगाकर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ बहुत शुक्रिया गोस्वामी विजय गिर महाराज आपका, सरदार गुरमुख सिंह आपका। अगली बिल्कुल लगा जी बिल्कुल इनवाइट कीजिएगा, मैं आऊंगा। अच्छा, होली के हवाले से ये कि होली का मेन सेंटर पाकिस्तान है, और सनातन धर्म हिंदू धर्म का मेन सेंटर इंग्लैंड पाकिस्तान है, गुरु नानक साहब सिख मजहब का मेन सेंटर पाकिस्तान है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया पैस्टर रफाकत सादिक, पैस्टर सलीम विलियम, आप लोग की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत जरूरी थी। साथ प्रोग्राम देखें आप। अच्छा, तो ये सारी चेन हम एक ही हैं। जी हम सब एक ही हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि हम एक दफा नारा लगाएं पाकिस्तान का। यार बिल्कुल लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे आइए, परचम तले हम एक हैं। बिल्कुल, बल्कि इमरान भाई अगर आप इस परचम के साए तले मिलकर एक हैं और रहेंगे। साझी अपनी खुशियाँ, साझी अपनी खुशियाँ, और हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।